So, in this discussion, we are going to discuss about the comprehensive sex education in India for adolescent. Comprehensive sex education is also known as CSE. Before going ahead with this, I want to tell you that the comprehensive sexuality education in India. In this topic, we are going to discuss about the sexual health, reproductive rights, and the need for CSE, along with some of the instances and the event of sexual assault, rape case, and the sexual abuse. So, if you feel uncomfortable at any point in this discussion, please take care of yourself by stepping away or seeking support. Your well being is important because some of the content is very sensitive and it can evoke strong emotions. Now, what we are going to discuss in this defining sex education, abstinence based sex education versus comprehensive sexuality education, key concept of CSE, need of CSE, sex education for adolescent, and Indian perspective, challenges in the dissemination of CSE, recommendation for the implementation of CSE. Before going ahead, I want to ask you, should I continue in English or do you want me to go ahead with bilingual? Whatever you're comfortable, we will do discussion according to it. So please share your views. I would suggest whatever you are comfortable with. Okay, but it also matter for all the members because we are also going to interact with each other. Okay, I will go ahead in the bilingual mode. Uh, yeah, thank you. बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू डिस्कस कि हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड है सो व्हाई वी आर इंगेजिंग एंड व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग और टाइम एंड रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज अ comprehensive sexuality education for adolescent. The first thing, because bachpan primarily engages with the school student or college students for providing them workshops on the various themes, and these themes are such as sensitization on the gender, and there is also cyber security workshops, and there is also workshops on adolescent sensitization programs along with safe and unsafe touch. तो जब हम स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंगेज होते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्सुअलिटी एजुकेशन व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन वी नीड टू प्रोवाइड टू this particular age group of students who are adolescent, and we also need to understand what are the recommendations we can provide to the stakeholders who are engaging with the adolescent. For example, school, society, family, friends, peer groups. ये सभी स्टेक होल्डर्स एडोलेसेंट के साथ इंगेज होते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्सुअलिटी एजुकेशन बिकॉज वी आर ऑल्सो इंगेजिंग विद एडोलेसेंट एंड ऑल्सो विद दिस स्टेक होल्डर्स. Now going ahead, who are adolescent? So can you guys share about who are adolescent? Anyone who is going through puberty or the phase of puberty. Okay, yeah. So adolescent is a phase in which any person is going through puberty. Adolescent word जो है वो लैटिन वर्ड adolescere से आया हुआ है जिसका मतलब होता है to grow, to mature, to emerge or to find oneself. According to WHO, जो phase होता है adolescent का, it goes from 10 to 19 year old. In some of the literature, this phase is also from 11 year to 21 year old in Indian context and also in the foreign context. WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट एक ऐसा फेज है जिसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक प्यूबर्टी डेवलप होती है अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड एडल्ट आइडेंटिटी डेवलप होती है. जो एडोलेसेंट फेज है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आता है. सो इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, जहाँ चाइल्डहुड में बच्चा प्योरली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, और एडल्ट जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में ये जो फेज है वहां पर आइडेंटिटी डेवलपमेंट होता है. सो इन एडोलेसेंट देयर आर सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स. There is a rapid physical growth and development. There is also social and psychological maturity involved in this phase. Sexual maturity,
और यहीं पे ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी भी होता है, बिकॉज बिफोर दिस पीरियड देयर इज अ पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड पीरियड में अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड होता है। लेटर चाइल्डहुड के पीरियड में जब हम बात करते हैं तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी लेटेंट होती है किसी बच्चे में, बट गोइंग अहेड इन द एडोलेसेंट पीरियड यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट मेंटल प्रोसेसेस एंड द एडल्ट आइडेंटिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम टोटल सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस। जो सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है हमारा पेरेंट्स पर, और मोस्टली हमारा पेरेंट्स पर चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, बट इस फेज में थोड़ा इंडिपेंडेंस होता है बच्चा, बट प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बिकॉज वन टाइम पेरेंट विल से दैट कि तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, बट द नेक्स्ट मोमेंट दे विल बी लाइक अरे तुम ये क्यों नहीं कर सकते, यू आर नाउ एडोलेसेंट, यू आर इन क्लास 9 10th 11th 12th और इन कॉलेज। ओके, नाउ गोइंग अहेड, क्या आप ये डिस्कस शेयर कर सकते हो कि एडोलेसेंट जो फेज था उसमें आपने जो चीजें फील की है वो कौन कौन सी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल मूड स्विंग्स और पीरियड्स और ग्रोइंग हेयर्स इन द न्यू प्लेसेस और एनीथिंग जो आपके लिए स्ट्राइकिंग थी या फिर जो आपको एकदम अलग लगी हो अपने आप के लिए। ये कंवल। I guess for me it was basically infatuation or getting crushes very often, like being ओके, attracted to the opposite gender. I think that was very striking for me. That's when I realized I was actually hitting puberty. थैंक यू। सो एनी मोर रिस्पॉन्सेस? Yes, Ayushi. And there is one more. Ayushi and Dipti. यार मुझे तो ऐसा लगता है कि प्यूबर्टी जी प्यूबर्टी ने तो मुझे इतना गंदा हिट किया था भाई। Okay. मुझे तो कुछ ऐसे अच्छा अच्छा तो याद नहीं है, बस मुझे याद है कि हाँ ऐसे फेशियल हेयर्स आ गए थे और उस टाइम बहुत कॉन्शियस सा फील होता था कि अरे मेरे ही क्यों अब पल्ली आ रही है, दूसरों के तो नहीं आ रही है। तो मेरे साथ तो वैसा सा सीन था। इट वाज नॉट लाइक कि लाइक आई एम Yeah. कोई क्रश व्रश नहीं हो रहा है, मैं बस अपने सेल्फ डाउन पे चली गई थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इवन इतना था कि मैं नहीं चाहती थी कि उस टाइम की कोई मेरी फोटोज अभी हो। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये फेस तो मुझे चाहिए ही नहीं। Okay. But now are you comfortable? कि मतलब वो पिक्चर्स देख करके अब कंफर्टेबल हो या नहीं? ओके, या अब है, अब क्योंकि अब मुझे समझ है ना कि हाँ इट डजंट मैटर, जैसे ये सबके साथ होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये अगर ग्रोथ हो रही है तो ये हो रहा है। पहले ऐसा या लगता था कि नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, बट अब कंफर्टेबल। इट्स गुड देन। दीप्ति? मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम थी, मेरी सबसे लड़ाई हो जाती थी, घर पे भी मेरे दोस्तों से भी काफी ज्यादा। या इट ऑल्सो हैपेंस, और स्पेशली आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके पहले मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और उसके बाद पीरियड्स कई बार आते भी नहीं है, फिर तुम्हें लगता है कि अरे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे थे। दैट ऑल्सो हैपेंस। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू अबाउट कि आपने कोई सेक्स एजुकेशन सेशन अपनी लाइफ में कहीं अटेंड किया है, इन स्कूल और इन एनी अदर प्लेसेस? नो। ओके, there are a lot of responses are coming like no. किसी ने नहीं किया। ओके, प्रज्ञा, या देयर इज वन रिस्पॉन्स कि किसी ने किया है। अब प्रज्ञा, कैन यू शेयर कि आपने कहाँ किया है और कैसा था आपका एक्सपीरियंस? Yes. So I was in the school. तब या हमारा हुआ था, but I remember it being very basic. Like they did tell us about कि क्या changes आते हैं, physiological changes क्या आते हैं, उसके बारे में था, periods क्या होता है. So ours was a all girls school. तो बेसिकली पीरियड्स कैसे मतलब कब आते हैं, क्यों आते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, लाइक हाउ टू वेयर अ पैड, उसके बारे में था. बट यस, इतना इन डेप्थ नहीं था. सो इट वाज स्टिल अंडर द वो स्टिग्मा रहता है ना, वो सब स्टिल था, वो शेम था, द गर्ल्स वर ऑल गिगलिंग एंड स्टफ. बट या वी वर टोल्ड अबाउट इट. ओके, और आई थिंक
मुझे जितने रिस्पॉन्सेस आए हैं कि मतलब इसके अलावा शायद किसी के स्कूल में कोई भी सेक्स एजुकेशन सेशंस नहीं हुए हैं। दीप्ति? यस। क्लास में हमारे तो ठीक से जो वही रिप्रोडक्शन का क्लास 10 की चैप्टर जो बायोलॉजी थी, हमारे बायोलॉजी के टीचर काफी अच्छे थे, उन्होंने भी काफी अच्छे से पढ़ाया था। ओके। स्पेसिफिक कोई सेशन तो नहीं था, पर हाँ जितना सिलेबस में था उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। Okay, yeah. It could be Because equal to in a some session. classes, in biology classes also, in some of the schools, टीचर बोलते हैं कि अरे ये जो चैप्टर है इसे छोड़ देने का, ये भी होता है। तो हमें तो ठीक से रिप्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा पाया भाई। हमारे टीचर काफी I know अच्छे that. थे, तो उन्होंने हमें काफी अच्छे से पढ़ाया। Okay. In my school, on 8th day के दिन हमारे यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट आते थे और एंड्रोलॉजिस्ट भी आते थे, और बट सेशन जो था वो गर्ल्स का अलग होता था, बॉयज का अलग होता था। और this were particularly we are talking about periods and all these things, pimples, hair growth, all these things, but it was very awkward session. it तो openly discussions नहीं होता था, मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट बता रहे होते थे कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें, बट इट वाज नॉट इन डेप्थ। या नाउ कमिंग टू द डिफाइनिंग सेक्स एजुकेशन। सो व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? क्योंकि जब हम एडोलेसेंट को देने की बात कर रहे हैं कि हमें उन्हें सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए या उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, तो क्या होता है सेक्स एजुकेशन? सेक्सुअलिटी जो है वो हमारे ह्यूमन लाइफ एक one of the central aspect है, and it revolves around sex, gender identities, roles, sexual orientations, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. और जो सेक्सुअलिटी है वो एक्सपीरियंस की जाती है, एक्सप्रेस की जा सकती है थ्रू और फैंटेसीज, डिजायर्स, थॉट्स, बिलीव्स, attitudes, values, behaviors, practices, roles, and relationship. This definition was given by WHO. Now moving ahead. Okay, so sex education, दो school of thoughts है. The first school of thought is based on the abstinence-based sex education, and the second school of thought is comprehensive sexuality education, which is known as CSE. Abstinence-based sex education. This approach is based on religious assumptions, और ये जो है एब्स्टिनेंस बेस्ड सेक्स एजुकेशन ये प्रमोट करता है सेलिबेसी को, जो इस चीज से बिलीव करता है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करने का मतलब है आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए शादी तक वेट करना चाहिए। सो वन नीड टू बी रिमेन वर्जिन अंटिल दे गेट मैरिड। और इस कारण से जो भी लोग एब्स्टिनेंस बेस्ड सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वहां पर सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं दी जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन इन्वॉल्व इन ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटी ओनली. And therefore there is a stigma same around the sexual health education when someone is providing you abstinence based sex education. Or there is also, we often hear about there is no deal without say. ये काफी बोला जाता है लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में, there is no deal without say, वो भी abstinence based sex education का एग्जांपल है. Now coming to the comprehensive sexuality education, CSE जो है वो बिलीव रखता है कि यंग पीपल के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ही कॉमन है, इस कारण से हमें सेफ सेक्स कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, अवेयर करना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे करना चाहिए थ्रू अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट. और इसके साथ हमें बच्चों को उनकी एजेंसी क्या है, उनकी वॉइसेस जो है, उनके राइट्स जो है सेक्सुअलिटी को लेकर के, उसके बारे में अवेयर करना जरूरी है. एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू गिव अवेयरनेस अबाउट द CSE. एंड जो CSE है वो एज अप्रोप्रिएट, कल्चरली सेंसिटिव, इंक्लूसिव, जो कि डाइवर्स नीड के बच्चों को कैटर कर सके और राइट बेस्ड होना चाहिए. और CSE को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, सपोज टीचर, कम्युनिटी एंड द पेरेंट्स, इन सबको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है. बिकॉज इनमें से किसी एक का भी अगर रेजिस्टेंस आता है कि हमें अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, तो हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, बट हम CSE को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. कंप्रेसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, इसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी
2018 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा. And this guideline is known as International Technical Guidance on Sexuality Education. International Technical Guidance on Sexuality Education has defined comprehensive sexuality education as, इनके अकॉर्डिंग CSE एक ऐसी करिकुलम बेस्ड प्रोसेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग है जिसमें बच्चों की कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में गाइडेंस दिया जाता है. और इन CSE में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल राइट्स, फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, puberty, relationships, contraception, consent, negotiation, boundaries, sexual violence, STIs, sexual hygiene, इन सब के बारे में CSE डील करता है. इस गाइडलाइन में 8 की कॉन्सेप्ट दिए गए थे जिसे कोई भी करिकुलम, जब भी हम कोई CSE का करिकुलम बनाते हैं तो उसमें हम इन 8 की कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं. The first key concept was relationship. फैमिली, पीयर, फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑल दिस रिलेशनशिप के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए. फॉर एग्जांपल, प्रीवियसली समवन हैज मेंशन्ड अबाउट इन्फेचुएशन, क्योंकि समटाइम्स पीपल थिंक कि इन्फेचुएशन हमें क्यों हो रहा है, या फिर इज इट लव और रोमांटिक फीलिंग्स, मतलब ये सारी चीजें है क्या हमें किसी को कब एक्सेप्ट करना है, सपोज समवन हैज कन्फेस्ड टू अस तो क्या करना है, इन सब चीजों के बारे में जो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है. द सेकंड की कॉन्सेप्ट वाज वैल्यूज, राइट्स, कल्चर एंड सेक्सुअलिटी, इन विच ह्यूमन राइट्स, सेक्सुअलिटी, कल्चर, सोसाइटी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. द थर्ड की कॉन्सेप्ट वाज अंडरस्टैंडिंग जेंडर. अंडरस्टैंडिंग जेंडर में जेंडर बायसेस, gender equality, gender-based violence, how the gender norms and the construction of gender also develop in society. All this concept will be included in the third key concept. In the fourth key concept, that is violence and staying safe, there is need to understand about the consent, privacy, and there is also how to use the ICT, because nowadays we are using digital media platforms every day. So how we need to use all this digital media platform, especially the social media, in a safe way. The fifth key concept is skill for health and well-being. In this key concept, the topics such as decision making, communication, refusal, negotiation skill will be included. In the sixth key concept, that is the human body and development, the anatomy and the physiology of sexual and reproductive part will be included, along with the puberty and the body image. The seventh key concept, that is sexuality and sexual behavior. In this, the sexuality, sexual life cycle, the behavior and the responses related to sexual activity, all this will be included. In the eighth key concept, sexual and reproductive health, in this key concept, the information about pregnancy prevention, HIV, the AIDS stigma, care, treatment, and support for HIV and AIDS patients. All these things will be included in the eighth key concept. Going ahead, now we need to understand कि हमने CSE तो पढ़ लिया कि CSE क्या है, CSE का करिकुलम कैसा होना चाहिए, but why do we need to give CSE for Indian adolescent? Everybody looking. This book is written by Candice Elo. It is majorly autobiographical narrative of author. So this is the first piece of there is one piece in this book which I have included in it, and there is also next piece is also I have included. I want someone to volunteer to read this. क्या कोई वॉलंटियर कर सकता है कि इसे लाउडली पढ़ सके? Yes, please. Can I? Yashika. Yeah. Yashika? मैं कर दूं? That fine? Yes, yes. Hello? Hello? Yeah, I'm audible, right? Yes, yes. Okay. No one told me that the room would be this small, that I would be this small, that the nurse would treat me small, would ask me questions about the first time, and this would be my first time. So I would have nothing to say, and they would keep asking. They would laugh in my swelling face. They would ask me more questions. My pounding head would spin. I would wet the table beneath it. My knees would become a tremble. The nurses would look up. Beyond my unyielding body, they would ask me if somebody had ever touched me. Love. Okay.
नाउ आई वांट टू आस्क कि आप सभी ने इसे सुना, तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? इज देयर एनीथिंग जो आपको इसमें स्ट्राइक कर रहा हो एंड यू वांट टू शेयर इट? May I? यस. Yes. Yeah. तो इसमें like she has emphasized on the word small a lot, which to me seems as this Pragya, your feelings of voice is maybe breaking. shame and embarrassment, feeling of being maybe Your voice is breaking. okay. अभी आ रही है क्या? Hello. हाँ. Am I audible? Yes. Yes. Yeah. So for me, the word small has been used multiple times. To me, denotes कि maybe this a sense of embarrassment, shame is there a lot. The feeling of maybe being looked down upon by the nurses. So that feeling is recurrent in the whole poem. Yeah. Yeah. Really valid. Thank you. Any other responses? Okay. So now moving to the next piece of this poem. If someone want to volunteer to read it, please go ahead. Is there someone who want to volunteer to read it? Kanchan, yes. Kanchan, Hello please. everyone. Yeah. I have to start from down there, right? Yes, yes. Down there is forbidden, is a safe with no key, is a hazard, is a pit bull's jaw snapped, is a Venus flytrap, is a danger zone, is a dungeon, is a clenched fist, is a place you don't touch, is a place he touched anyway, is a place I could not talk about, is a private thing, is secret, is unknown, is reason my head, hung low, leaving my eyes only proud enough to trace. I'm unable to read the last word, it's covered. Yeah, trust me. To trace my feet. Okay, thank you. Now, if someone want to interpret this piece. Okay, I think there is no responses. Yeah. So, second piece is more about what is your private part. What is this part is very secret, is unknown, जिसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताता. Okay. So these two pieces, in the first piece, author has shared her experience of going to the nurse room और nurse किस तरीके से respond करती है and how she is feeling. And the second, और उसमें author nurse उससे इस तरीके से पूछ रही है, is there anyone who has touched you down there? And in the second piece, she is sharing, yes, someone has touched there. But this is the experience of sexual assault for her when she was in her childhood. जब author अपने किसी friend, अपने parent के किसी friend के यहाँ जाती है, and the time she was around 5-6 year old, और उसके साथ कोई sexual assault करता है, and she was molested there. And that particular experience of being assaulted, being molested as a child, and now you can't even share about who has touched there. Or when you are in your childhood, आपको पता भी नहीं होता कि इस private part, is this a private part, या क्या है, इसे कौन टच कर सकता है, क्या आप टच कर सकते हो, कौन टच कर सकता है, कब टच कर सकता है, कैसे टच कर सकता है, all this thing. Okay, so
Why I have included these two pieces particularly in CSE, because I think most of us have gone to gynecologist or a nurse room, and I want you to share कि अगर आप किसी gynecologist के पास गए तो आपका experience कैसा था? Yeah, I mean, I have not personally gone to a gynecologist, Yeah. but I have friends around me जिन्होंने बोला they had really weird experiences. I mean, I think even there is a lot of entry barrier कि जब वो office में भी जाते हैं, the looks they get, especially if the girl is not married. So, Yes. I mean, वो जो looks मिलते हैं and if they are not with their partner, if they are going alone, तब तो फिर अलग ही level का वो, I think, victimization they have felt. That is what I've experienced, what I've seen and heard through some of my friends. But Okay. yeah, I Thank you mean, for sharing, and this is really true because even in our R&D team, we were discussing about कि gynecologist के पास जाते समय कैसे experience होते हैं, और for me, luckily, I have been to gynecologist several times, और मेरे एक्सपीरियंस gynecologist का तो अच्छे रहे हैं, but sometimes they ask you very weird question. अगर आपके periods नहीं आते and you went there when you're in class 9th, in class 10th, class 11th, 12th, and also in your college time, if you're going there, they will ask you, are you pregnant? Directly. अगर आपको periods नहीं आ रहे हैं 3 month, 4 month, 8 month, तो जो एक एक्सपीरियंस होता है आपका कि यू आर नॉट गोइंग देयर कि कोई आपसे ये पूछे कि क्या आप प्रेग्नेंट हो, और वेदर यू हैव स्लेप्ट विद समवन, बट आप ये समझना चाहते हो कि आपके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, आपको पेन क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, बट दे विल आस्क यू वियर्ड क्वेश्चन एंड मेक यू फील अनकंफर्टेबल. सो सीएससी, अगर हम सीएससी की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स और ऐसे लोग जो सीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, they are also not aware about CSC. I particularly remember because I think no one is sharing their experiences in the group, so I will share mine. I was in class 10th. And I have also visited to gynecologist several times, and Okay. बात ये नहीं है कि they have asked weird questions, but I've always found the doctors to be very rude to me. कि हमेशा से ये they have those lines in their on their forehead कि like they are not welcoming at all. ऐसा लगता है कि क्यों ही आ गए हैं ये लोग यहाँ पे. Yes. और फिर मतलब बहुत ही weird सा लुक होता है. अगर आप क्वेश्चन पूछना भी चाहते हो तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते कि क्या पूछे और क्या नहीं पूछे उनसे अपने बारे में. क्वेश्चन तो बाद की बात है, तुम्हें वहां जाके ऐसा लगता है कि अच्छा गलत ही आ गए, अपनी बीमारी से ही जूझ लेते हैं इनसे पूछने से अच्छा तो. Literally it also happens there. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्लास 10th का ऐसा है, मैं रेसिडेंशियल स्कूल से हूँ, तो रेसिडेंशियल स्कूल में मेरे क्लासमेट्स मुझे बता रहे कि तुम्हारी मम्मी आई हुई है नर्स रूम में. I was like कि मेरी मम्मी क्यों आई है, एंड आई वेंट टू द नर्स रूम, एंड नर्स रूम कह रही है कि ओह मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलाया था क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें बुला रखा है. इट वाज रियली वियर्ड, और पता नहीं मुझे एकदम से इतना अजीब सा फील हुआ. और ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट गोइंग टू गायनेकोलॉजिस्ट एंड देयर वाज सम हार्मोनल इम्बैलेंस एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन, बट आई वाज लाइक एटलीस्ट उन्हें मुझे तो बताना था कि वो क्या बताना चाह रही है, क्या बोलना चाहती है मेरी मॉम से. एटलीस्ट यू कैन शेयर टू मी, और मैं मेरी मॉम को कॉल करती. इट वाज रियली वियर्ड, और मैंने जैसे मेरी मॉम को देखा मुझे इतना रोना आया, और सारे लोग बैठे हुए थे, नर्स रूम पूरा पैक था, और वो मेरे बारे में ऐसे डिस्कस करे जा रही है. इट वाज रियली रियली वियर्ड फॉर मी. नाउ कमिंग टू द सेकंड पीस. सेकंड पीस के बारे में इफ आई वॉट एवर आई हैव इंटरप्रेटेड रिगार्डिंग कि मतलब सीएससी हमें क्यों जरूरी है, और ये पीस मैंने सीएससी के लिए यहाँ क्यों ऐड किया है, बिकॉज सीएससी जो हम एडोलेसेंट के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंप्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो देयर लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें पता नहीं होता है कि मोलेस्टेशन क्या होता है. अगर हमें कोई टच कर भी ले, देन ऑल्सो वी डोंट नो कि ये चीज जो हमारे साथ हुई है वो रियली वी आर असॉल्टेड, वी आर अब्यूज्ड, वी आर मोलेस्टेड.
क्योंकि अगर आपको इन सब चीजों का पता नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट रेज वॉइस फॉर योर सेल्फ, और एक एम्बेरसमेंट, सेम स्टिग्मा, ये सारी चीजें उसका इन्वॉल्व हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट और sexuality education, and we need to include these in our school. Mitali, sorry, I'm cutting you in between. Yes, yes. But Yashwin, Mitali, I was thinking regarding this conversation ki totally off topic, but would the team like if we have a a young gynecologist to have a session with the team, and the team can openly ask their queries with them? Online ही कर सकते हैं, but I have a very good friend who is an MD topper in Punjab, and she has a very good idea about all these things, periods के बारे में and other things, masturbation, menstruation, pregnancy, STDs, contraception, and all these kind of things. Do you think we should have? तो फिर तो मैं उससे बात करूँ. Just maybe what we can do is have a poll in the main group after this. Of And course, it will be a good idea, and we can engage. It will be more kind कि मतलब वो हमें बताए, and we can also interact with them. yeah, it's going to be an Q&A basically, और कुछ भी नहीं होगा. हम टीम से गूगल फॉर्म में पहले कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, because the thing is now we are in that age that most of the team might be sexually active and they might make certain mistakes जिसके लिए बाद में उनको regret हो सकता है. So it's good that we know precautionary methods and everything. So I would highly suggest कि we can have a workshop. मैं पहले भी राखी से बात कर रहा था on safe sex and contraception, but along with that we can also have discussions on other things. So just maybe just think about it and let me know if we want to do something that for the team. It's really a good idea. I think we can put in the main group, और अगर around 20-30 लोग भी yes कर रहे हैं तो we can go ahead. Yeah. Thank you for the suggestion. Now going ahead, in this figure you can see this is an iceberg model, जिसमें बीच में एक लाइन है, उसके ऊपर विजिबल पार्ट्स है, नीचे हिडन है. जब भी आइसबर्ग मॉडल यूज करते हैं तो नीचे वाला पार्ट जो है वो छुपा हो रहता है, और ऊपर पानी के ऊपर जो आइस दिख रही होती है वो विजिबल पार्ट होता है. जो विजिबल पार्ट हमें सीएससी के कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम ये देख रहे हैं कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं अपने सराउंडिंग में. दे आर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, टीनेज प्रेगनेंसीज, फीमेल फोर्टिसाइड्स, होमोफोबिक बुलिंग. ये सारे इवेंट्स न्यूज में, मीडिया में आपको हर जगह सुनने मिलते हैं. आई थिंक लास्ट वीक ऑल्सो वी देयर वाज अ न्यूज अबाउट कि एक लड़की है जैसे एग्जाम के बीच में एक्सेस नहीं दिया गया पैड के लिए. लास्ट ईयर देयर वाज एन इंस्टेंस ऑफ कि एक लड़की को एग्जाम देने इसलिए नहीं दिया गया बिकॉज शी वाज अ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. और जब वो स्कूल में एग्जाम देने आती तो टीचर्स और प्रिंसिपल का कहना ये था कि इससे बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. Now we don't know कि बाकी बच्चे कैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे, because that survivor is also going through a lot, and there is also incidents of in every day. I think हम ऐसे experience सुन रहे होते हैं. There is a rape, there is a sexual assault, there is menstruation related discrimination, early teenage pregnancies are also there. और इन सब के पीछे अगर हम क्यों ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, because there is a pattern of rape culture, and there is very lack of information or misinformation, and there is also denial of agency by the guardians, such as कि guardians होते हैं वो हमें अपनी एजेंसी नहीं देते हैं, अपनी वॉइसेस नहीं देते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले सके. देयर इज अ लॉकर रूम टॉक कल्चर है. ये सारे ही पैटर्न्स के कारण ये इवेंट्स होते हैं. और इन सब के पीछे जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन. और सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग पॉलिसीज एंड द लॉ इम्प्लीमेंटेशन, देयर इज अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. और अगर हम सबसे नीचे सेक्शन की बात करें इस मॉडल में, तो देयर इज और परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस एंड और थिंकिंग प्रोसेस. ये सारी किससे बनी हुई है? मोस्ट ऑफ द केसेस दिस थिंकिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स or meets cultural taboos and the patriarchal values, misogyny and the religious beliefs. All these mental models make our thinking process in society. इस सोसाइटी से ही फॉर्म होता है जो ये सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं. Now, what if this is Avni and Aman, and what if Avni and Aman will attend the Bachpan adolescent session?
because Bachpan also provide the facilitation team provides the adolescent sessions also. अगर ये बच्चे जो है वो बचपन एडोलेसेंट सेशन अगर अटेंड करते हैं तो क्या होगा? जो एडोलेसेंट सेशंस होते हैं वो काफी यूथ फ्रेंडली होते हैं. It will increase the knowledge about the sexual and the reproductive health, and this session will also provide them a positive attitude toward the sexual health. इससे उन्हें ये जो सेशंस होते हैं, this will encourage Avni and Aman about the safe informed decision making for a healthy sexual life. और इन सेशंस में हम पेरेंट्स और टीचर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं ताकि इनके इन्वॉल्वमेंट से जो है हम बच्चों को और अच्छे तरीके से एडोलेसेंट सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड व्हाई डू वी नीड टू प्रोवाइड एंड व्हाट विल हैपन इफ वी विल प्रोवाइड देम एडोलेसेंट सेशन? इंडिया में जो रेप केसेस है, सेक्सुअल वायलेंस केसेस है और द क्राइम केसेस है, एनसीबीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये केसेस बहुत ही ज्यादा है. और इन केसेस में जब हम बात करते हैं कि इन केसेस को हम कम कैसे कर सकते हैं, सो वी नीड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एडोलेसेंट एजुकेशन, देन वी कैन रिड्यूस दिस इंक्रीजिंग केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द रेप केसेस. Sexually transmitted disease, there is very increasing amount of HIV and the AIDS and STIs. And the unwanted teenage pregnancy इसलिए भी होती है because adolescents are not aware about what will happen if they will engage in any sexual intercourses, and there are sometimes forced marriages, early child marriages, and because of this और early child marriages में बच्चों के पास ये एजेंसी नहीं होती है कि वो अपने लिए राइट ले सके, स्टैंड ले सके और बोल सके कि we don't want to do this. There's a pornography, and स्पेशली इन टूडे कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं अभी के कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, तो सबके पास सोशल मीडिया से एक्सेस है और मोबाइल फोन्स, लैपटॉप सबके पास, मतलब मोस्ट पीपल के पास अगर मोबाइल फोन तो अवेलेबल है, लैपटॉप्स भी अवेलेबल होते हैं. और इस कारण से व्हेन वी आर गोइंग थ्रू एनी सर्च इंजन, देयर आर लॉट ऑफ पोर्नोग्राफी, वी कैन एक्सेस इट इजीली. और जब हम पोर्न वगैरह देखते हैं दैट टाइम हमारे इसमें ये हो जाता है कि अगर हमें पर्टिकुलर ये चीज करनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज होना है या इन्वॉल्व होना है, तो हमें इस तरीके से होना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है. उसमें जो डिजायर्स होते हैं, फैंटेसीज होती है, वो सारी वैसे ही बच्चों में होती है जैसे वो फोन देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग. And there is also social media abuse, internet bullying, and the sexting, because everyone is using the social media accounts such as Instagram, and there is also Snapchat, Instagram, Facebook, all. There is also Skype, Hangout. जब आप ये सारी चीजें यूज कर रहे होते हो और अगर आप इनसे बात कर रहे हो उस पर इंटरनेट में, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स, एंड व्हेन यू आर एडोलेसेंट, यू डोंट इवन नो अबाउट थिंग्स लाइक, okay, if someone is asking you, hey, how are you doing, can you send me nudes, can you send me your pictures, and अगर आप पिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो पिक्चर्स भी अगर हम किसी को भेजते हैं, there is also case of, and they will ask you again कि अगर आपने पिक्चर सेंड की है तो आप हमें nudes भेज सकती हो, can you send me a picture of this part, can you send me this thing. And sometimes even when you are not engaging with anyone about like any strangers message about hi, hello, तो कई बार आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे और किसी का मैसेज आ रखा है और उसमें उसने आपको ऐसी पिक्चर्स भेज रखी है कि यू कांट इवन एक्सपेक्ट इट. Sex education for adolescent and Indian perspective. In the Indian perspective, first we will go ahead with the history of sex education in India. कि गवर्नमेंट में पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किस तरीके से सेक्स एजुकेशन का रिगार्डिंग. जब हम अर्ली इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो 1951 में नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी ने देयर वाज अडॉप्शन ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, और जिसका फोकस था पॉपुलेशन कंट्रोल करना. बट एज वी कैन सी कि नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. 1969 में एक नेशनल सेमिनार कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑन सेक्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग. 1970 से 80s की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही कम कोई इनिशिएटिव्स आए थे सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग, और कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं आ पाया था. इन द 1990s, 1993 में एनसीईआरटी ने एडोलेसेंट एजुकेशन को
के ऊपर एक सेमिनार रखा था और उन्होंने डिफाइन किया था एडोलेसेंट एजुकेशन को कि ये एक ऐसा एजुकेशनल इंटरवेंशन है टू प्रोवाइड द एक्यूरेट नॉलेज ऑन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल हेल्थ, ग्रोइंग अप प्रोसेसेस एंड द लाइफ स्किल्स। इस सेमिनार में 3 की फोकस एरिया डिसाइड किए गए थे एडोलेसेंट एजुकेशन को लेकर। द फर्स्ट वन वाज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड वन इज HIV एंड एड्स अवेयरनेस, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन। 2000 में कुछ की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आए थे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसने फोकस किया था कि अफोर्डेबल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेशनल एड्स प्रिवेंशन पॉलिसी 2002, जिसने फोकस किया था कि HIV अवेयरनेस एंड द सेफर सेक्स प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जानी चाहिए। National Youth Policy in 2003 has focused on free state-sponsored counseling and the adolescent clinics and young health associations. National Health Policy 2002 has focused on awareness on health conscious behavior in school. Now going ahead with Adolescent Education Program, AEP. Adolescent Education Program AEP NCERT ने फॉर्मुलेट किया था नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके की फोकस एरिया सेम थे बिकॉज एनसीईआरटी ने ही इसे फॉर्मुलेट किया था। तो की फोकस एरिया अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब्सटेंस एब्यूज एंड एडिक्शन, HIV, एड्स। AEP प्रोग्राम के लिए पहले से ही जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स थे, 3 एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंटीग्रेट किया था और एक AEP प्रोग्राम लेकर आए थे। जो 3 इनिशिएटिव्स से इंटीग्रेट किया गया था वो थे एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट। 2007 में जो AEP प्रोग्राम जो आया हुआ था 2005 में, उसे काफी बैकलेस और क्रिटिसिज्म मिले थे। 11 स्टेट्स ने इसे विड्रॉ कर लिया था। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने सेक्स एजुकेशन को बैन कर दिया था और इन्हें बैन इसलिए किया था क्योंकि इनका कहना था कि जो AEP की जो मॉडल्स बनी है उसमें बहुत ही सेक्सुअली प्रोएक्टिव मटेरियल यूज किया गया है और साथ में एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। और इसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस था वो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज से आया था और साथ में टीचर एसोसिएशन से आया हुआ था। और इसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम sex education based on the AEP program, we need to provide them yoga and the abstinence only sex education. 2009-10 में NCERT ने UNFPA के साथ कोलैबोरेट करके AEP प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को रिवाइज किया और साथ में इस करिकुलम के जो फीचर्स थे वो थे कि एज अप्रोप्रिएट एंड कल्चरली सेंसिटिव कंटेंट इंक्लूड किया जाए और जो एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस 2005 में इंक्लूड किए गए थे उन्हें हटा दिया जाएगा। और इन्होंने 5 मॉड्यूल्स निकाली थी जो 5 डिफरेंट सेक्शंस पे थी। द फर्स्ट वाज ऑन द ओवरव्यू ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन, सॉरी the second one was the puberty, self-esteem and the peer relationship. Third is on the substance abuse prevention. Fourth is on the HIV AIDS transmission and the prevention. Fifth one is on the training and advocacy for facilitators. Now coming recent में जो है 2018 में करिकुलम ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट एनसीईआरटी ने डेवलप किया था, जिसमें हेल्थ और वेलनेस पर फोकस किया गया था और 11 थीम्स इंक्लूड की गई थी, जिसमें से कुछ थीम्स जो है वो सीएसई में भी इंक्लूड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ, इंटरनेट सेफ्टी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सब्सटेंस मिसयूज प्रिवेंशन। बट ये करिकुलम का वीक पॉइंट ये था कि ये करिकुलम कंपल्सरीली किसी भी स्कूल को इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं था। ये डिपेंड कर रहा था कि if they want to implement they can implement, if they don't want they don't need to implement it। और इसीलिए मोस्टली स्कूल्स में इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया भी नहीं गया और ये करिकुलम फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के लिए के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एडवोकेट किया है कि कंप्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि जिससे हम सेक्सुअल क्राइम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, देन we also discuss about कि what was the AEP program. Now going ahead, there were a lot of individual sexual health education program for adolescents in India. जो individual sexual health education program है वो काफी सारे
काफी सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल प्रचार, स्टेप, उड़ान, सलोनी, गर्ल्स फर्स्ट, शहर, स्टेप, स्कूल बेस्ड टीनेज एजुकेशन प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स जो है मोस्टली एडोलेसेंट के लिए है, जो कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका टारगेट ऑडियंस यूथ है। और साथ में हम बात करें कि इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मोस्ट केसेस में जो ये इंडिविजुअल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एनजीओस के द्वारा, पीयर्स के द्वारा, देयर इज आल्सो फ्रॉम दी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक केस जो है हिमाचल प्रदेश में स्कूल बेस्ड प्रोग्राम किया गया था, स्टेप स्कूल बेस्ड टीनेज एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें जो यूथ के लिए 13 to 16 ईयर्स के लिए किया गया था। और इस जो प्रोग्राम में कंपोनेंट थे, इसमें कंपोनेंट कुछ इस तरीके से थे। इसमें सेशंस प्रोवाइड किए गए थे ट्रेन पीयर एजुकेटर्स के द्वारा, विजुअल एड्स का यूज किया गया था, एक कम्युनिटी क्रिएट की गई थी जिसमें कि फीडबैक मिल सके जो उन्होंने सेशंस दिए हैं उस पर। और साथ में इन्होंने कहा था कि जो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन से कि इफ दिस मच this particular percentage of students are coming to enroll in the state program, so the program is this much successful or not successful. अब इस जो प्रोग्राम था स्टेट प्रोग्राम, इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए गए थे वो इस तरीके से थे: HIV एड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अल्कोहल अब्यूज, सोशल प्रेशर, सोशल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअल वैल्यूज, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, कोपिंग स्किल्स। और इन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया था कि बाद में जेंडर रोल्स के बारे में फ्यूचर प्रोग्राम्स में इंक्लूड करना है। चैलेंजेस इन द डिसमिनेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन टू एडोलेसेंट। क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम सीएससी को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, एजुकेशन सीएससी को एडोलेसेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं इंडिया में? फर्स्ट चैलेंज जो है वो सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल नॉर्म्स और कल्चरल फैक्टर्स में, क्योंकि सेक्सुअलिटी एक टैबू टॉपिक है जिसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत डिस्कम्फर्ट भी फील करते हैं लोग, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। साथ में सेक्सुअलिटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो देयर इज ऑल्सो कल्चरल स्टिग्मा, और इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ काफी होते हैं, और जो कि जैसे हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम इंफॉर्मेशन नहीं है बोल रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ वेदर दे हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन, वेदर दे हैव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, हमें ये नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है और मिथ भी है, और वही सारी चीजें फिर से परपेचुएट होती है और कंटिन्यूटी आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर में मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पर रहती है कि वो इन सब चीजों के बारे में बच्चों को बताए। एंड जब हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं तो देयर इज ऑल्सो सेल्फ हॉस्टिलिटी, कि हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, स्पेशली विथ आवर पेरेंट्स, इन आवर फैमिली। रिलीजियस फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएससी। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा एडवोकेट करते हैं एब्स्टिनेंस सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि एब्स्टिनेंस सेंटर्ड एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे सो दैट द चिल्ड्रन विल बी एबल टू involve in any sexual activity only after marriage. But जब हम किसी बच्चे से ये कहते हैं कि they will involve in the any sexual activity only after marriage, तो हम इसे उन्हें ये नहीं बताते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्या है, या फिर इसमें कुछ क्या हम इसमें कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते। कॉन्ट्रासेप्शन, सेफ प्रैक्टिस कैसे की जाती है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसी है, और एसटीडीज और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पेरेंट्स का एटीट्यूड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सीएससी को इम्प्लीमेंट करते समय। पेरेंट्स मोस्टली बहुत बार मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को पास करते हैं, और अपने ट्रेडिशनल सोसाइटी में ओपन डिस्कशन अलाउ नहीं होता है सेक्सुअलिटी एजुकेशन के रिलेटेड। एंड आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन गो टू आवर पेरेंट्स एंड आस्क अबाउट how the things goes in sex and all these things. We can't even discuss with our parents. We can discuss mostly with siblings, I think, but not more than that. और अभी के
कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यंगर पेरेंट्स जो है वो काफी रिसेप्टिव है कि सीएससी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट स्टिल एक जनरेशन गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। और कई बार पेरेंट्स को ये भी डर होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें अगर सीएससी प्रोवाइड किया जाएगा, then they will be more actively engaged in CSE in the sexual activity rather than being aware about this sexual activity. There is a lack of access to the CSE resources. CSE के resources easily access नहीं हो पाते हैं, और क्योंकि adolescent को ये भी लगता है कि इसमें social stigma है अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो, एंड स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग ऑन दी नाउअडेज वी कैन से कि मतलब हम गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, और काफी सारे सर्च इंजन है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं और रिसोर्सेज पता कर सकते हैं, बट स्टिल यू डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, इसमें से हम किस में इजिली समझ सकते हैं और हमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। इंडिविजुअल फैक्टर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स चूंकि सोसाइटी में ऑलरेडी इतना कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है और क्रिटिसिज्म मिलता है जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें फियर होता है कि लोग हमें जज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअलिटी एजुकेशन। लैक ऑफ पॉलिसीज इन द फॉर्मल करिकुलम, सीएसई के करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं है, फर्स्ट चीज। सेकंड थिंग इज कि जब कोई स्टैंडर्डाइज करिकुलम अवेलेबल नहीं होता है बोर्ड के द्वारा, चाहे वी कैन डिस्कस अबाउट सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स, जब ये बोर्ड्स कंपल्सरीली स्कूल्स को नहीं कहती है कि वो कोई सीएसई करिकुलम को इम्प्लीमेंट करे, तो ये स्टेक होल्डर्स पे चले जाता है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं। और स्टेक होल्डर्स में भी जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, हेडमास्टर्स है, कम्युनिटी है, नेबर्स है, तो हर किसी का एक सहमति ले पाना काफी डिफिकल्टी होती है। और किसी किसी स्टेट्स ने सीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स कल्चरल कंसर्न को लेकर के बंद भी ऐसा बैन कर दिए हैं, और कई बार टीचर्स भी जो सेक्स एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसे हटा देते हैं ड्यू टू डिस्कम्फर्ट एंड हेजिटेशन कि वो कैसे इसे क्लास में पढ़ा पाएंगे। Now what we can do? So the recommendation for the implementation of CSE for adolescent in India. There must be comprehensive policies in the curriculum on CSE. There must be diverse stakeholder engagement. A tailored and inclusive curriculum provide किया जाना चाहिए। मीनिंगफुल यूथ एंगेजमेंट होना चाहिए rather than कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बच्चे पढ़े, और जब हम जो स्पेशलिस्ट है जो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सीएससी के बारे में क्लासेस में, स्कूल्स में, वो मीनिंगफुली बच्चों को इंगेज कर सके। देयर मस्ट बी जेंडर सेंसिटिव इंटरवेंशंस होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ताकि हम इसको और एक्सेसिबल बना सके। comprehensive sex ed toolkits provide की जा सकती है, and some of the toolkits we can also discuss later on. Continuous process and assessment होना चाहिए। कल्चरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स ये चीजें फेस की जाती है कि कोई स्टेट जो है उसने विड्रॉ किया है सीएससी का करिकुलम को या एईपी को, सो दे आर सेइंग कि ये हमारे से कल्चरली इनसेंसिटिव है, ये हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। सो वी कैन मेक द करिकुलम मोर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड द कल्चरल स्पेसिफिक, and there is no need to go ahead with the sex education, there is no need to go ahead with the word sex education if some of the society is not comfortable because of their conservative mindset. We can also go ahead with the life skills and family planning, and there is like a life skills, skill education and the family planning. क्लियर और रिलेवेंट लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए सीएससी के लिए। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटीज, कि हम कौन सी एक्टिविटीज सीएससी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बिफोर गोइंग अहेड विद एक्टिविटीज, आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि अगर आपने फैसिलिटेशन टीम से वर्क किया है तो, या उनके साथ वर्क किया या फैसिलिटेशन टीम से ही है, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज एडोलेसेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं या करवाते हैं बच्चों से।
Is there no one from facilitation team? Dipti, can you share? Dipti, I'm not able to hear you. Yeah. एक्चुअली मैं फैसिलिटेशन से हूँ, पर अभी तक मेरी ट्रेनिंग नहीं चल रही है। मैंने कोई मतलब लाइक कोई सेशन अटेंड नहीं करा है। Okay. अच्छा, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना? या यस, रिसेंटली ज्वाइन करा। Okay, no problem. So we can go ahead with the activities which I have gone through in the literature. The first activity which we can discuss is case safe unsafe touch activity. जब safe unsafe touch activity को sketch करने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हें जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है वैसे पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और इस पिक्चर्स में हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इस पिक्चर को कलर करें। सपोज आपको अगर बॉडी पार्ट्स में हैंड्स है, लेग्स है, ब्रेस्ट, हेयर्स, चीक्स, माउथ, लिप्स, आप क्या फील करते हैं अगर सपोज कोई इन सारे आपके बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है तो आप कौन से बॉडी पार्ट को टच करते समय मतलब कोई अगर आपको टच करते आपके किसी बॉडी पार्ट को टच कर रहा है तो आप कब सेफ फील कर रहे हैं, कब अनसेफ फील कर रहे हैं, तो वहां पर आप कलर्स कर सकते हैं और बच्चे इससे इंगेज भी होंगे। साथ में उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा ये सेफ है, ये अनसेफ है। और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसा हो सकते हैं जिसके बारे में बच्चे कह सकते हैं कि मे बी दे फील सेफ अगर उनके पेरेंट्स टच कर रहे हैं या फिर उन जिनसे वो फेमिलियर है एंड दे फील कंफर्टेबल, तो अगर वो टच कर रहे हैं देन दे आर ओके, अगर कोई और टच कर रहा है देन दे आर नॉट ओके। तो मे बी वाले भी कुछ बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। हम ऐसी एक्टिविटीज भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वी कैन ऑल्सो गो अहेड विद द इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक्स। इन स्टोरी बुक्स में we can go ahead with what is period and how the children are developed, बच्चे कहाँ से आते हैं। और जब हम ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं तो वी कैन ऑल्सो थिंक कि एज स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग कैसे हम स्टोरी बुक्स बना सकते हैं जिसमें कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकता है और कुछ डायलॉग्स लिखे हो सकते हैं बच्चों के लिए। द थर्ड थिंग इज पेशेंट स्पेशलिस्ट मैच, जिसमें हम कार्ड्स बना सकते हैं। इन कार्ड्स में जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट का एक कार्ड बना होगा पहले तो जिसमें उसका ऐसे फिगर टाइप से बना हुआ है। दूसरे कार्ड में लिखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट का फंक्शन क्या होता है। वैसे एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, इन सब के हम कार्ड्स बना सकते हैं कि ये स्पेशलिस्ट के कार्ड्स, उनका नेम और उनका फिगर। और हम बच्चों को पहले बता सकते हैं कि ये जो है एंड्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट कौन होते हैं और gynecologist कौन होते हैं। Andrologists are those who are dealing with, who are specialized in the male reproductive sexual health, and gynecologists are those who are specialized in female reproductive sexual health। तो इस तरीके से हम उनके लिए पेशेंट स्पेशलिस्ट मैच बनाकर उन्हें अवेयर कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो डिमिस्टिफाइंग मिथ गेम। हम जो मीथ होते हैं उनको डिमिस्टिफाई भी कर सकते हैं थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स के बारे में अगर हम कोई 3 स्टेटमेंट्स बच्चों को बोल रहे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से मिथ्स और कौन सा करेक्ट है। इस तरीके से भी हम गेम्स प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ। एंड वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पीरियड प्रोडक्ट्स सच एज देयर condoms, pills, and when we need to take pills। हम कब पिल्स ले सकते हैं, कब नहीं लेना चाहिए, क्या डेली लेना चाहिए, पीरियड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या एडवांटेजेस है कौन से प्रोडक्ट को यूज करने से, क्या डिसएडवांटेज है पीरियड प्रोडक्ट को यूज करने से, कौन से पीरियड प्रोडक्ट्स में आप कंफर्टेबल है, कौन से में आप अनकंफर्टेबल है। वी कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल दिस थिंग्स। दिस इज ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड नाउ if you want to ask anything related to the content or related to the discussion or this topic, please free to ask.